Dear friends, today we will learn about Southern blotting technique. Southern blotting technique is a specific technique, or you can say laboratory technique, used to detect the specific sequence of DNA from the blood tissues or any tissues, blood sample or any tissues. This is called Southern blotting technique. That technique was discovered by Sir Edwin Southern in 1975. That's why the technique is named on the scientist who had discovered. That's why it is called Southern blotting technique. First, we have to learn about what exactly is called blot. To blot means to transfer. To blot means to transfer. Transfer what? Transfer either DNA, transfer of RNA, transfer of protein. From where? From the gel to the nitrocellulose membrane. So to transfer the DNA, RNA or protein from the agar gel or the SDS gel to the nitrocellulose membrane is called a blotting technique. There are three different types of blotting technique. When we are trying to detect the DNA, is called Southern blotting technique. When we are trying to detect RNA, this is called Northern blotting technique. When we are trying to detect protein, that is called वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. पूरा का पूरा सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक मैं आपको 10 स्टेप में समझाता हूं. एक एक स्टेप करके मैं बोर्ड पे ड्रॉ करके आपको सिखाता हूं कैसे सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होता है. सो लेट्स बिगिन ऑन बोर्ड. ओके, सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, यहाँ स्टेप लिखा हुआ है. इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टू आइसोलेट द डीएनए एंड देन इन द सेकेंड स्टेप this DNA should be cut by the restriction endonuclease to separate the fragments. So आपको यहाँ DNA fragment दिख रहा होगा. This is created by the restriction endonuclease. Already we know the restriction endonuclease is an enzyme having ability to recognize the specific sequence and cut at the specific site of the DNA. So हम DNA के fragments generate करेंगे. You can observe here the DNA fragments जो है यहाँ double stranded DNA fragment दिख रहे हैं. So in the third step it is important. The third step में हम agar gel electrophoresis करते हैं. That means these double stranded DNA fragment are then separated on the basis of size. साइज के बेस पे हम सेपरेट करते हैं agar gel electrophoresis में DNA फ्रैगमेंट को. एक्चुअल में क्या है कि आपको यहाँ विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा. जब लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट को कट करते हैं किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तो डिस्टिंक्ट बैंड नहीं दिख पाता, उसकी जगह पे स्मीयर दिखता है. ऐसा ये आपको ऐसा विजुअलाइज होगा जब आप यहाँ पे लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट को रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट करेंगे और फिर अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे. सो एक स्मीयर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इंस्टेड ऑफ डिस्टिंक्ट बैंड. उसके बाद जब अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं देन इन द फोर्थ स्टेप इट इज नीडेड टू डू द अल्कली ट्रीटमेंट. Alkali treatment is also an important step. That means the restriction fragment that present into the gel are denatured by sodium hydroxide solution. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्यों यूज करते हैं? दैट मीन्स कि अल्कली ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना. इंस्टेड अल्कली ट्रीटमेंट that needed to denature the hydrogen bond which generate the single strand of the DNA. जो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड डीएनए फ्रेगमेंट आपने देखा था जो यहाँ साइज के बेस पे अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट हुआ है उसको हम कन्वर्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंड में बाय यूजिंग द अल्कली ट्रीटमेंट process. So this is the fourth step where we are doing the alkali treatment. In the fifth step, fifth step is actual called the blotting technique where we can make the imprint of that DNA which is separated on the gel towards the nitrocellulose membrane. So ये पोर्शन जो है पूरा का पूरा ये समझने वाला है. इसका अरेंजमेंट आप देखेंगे एक बार में तो आपको ख्याल आ जाएगा. ये पूरा एक चैम्बर है यहाँ जो दिख रहा है. ये चैम्बर है बफर चैम्बर जिसके अंदर आपको ट्रिस बफर दिख रहा है. बफर यहाँ पे लिखा हुआ है, बफर फिल्ड किया हुआ है. इस चैम्बर के ठीक अंदर आप देखेंगे एक सॉलिड सपोर्ट रखा हुआ है. दैट इज कॉल्ड जेल सॉलिड सपोर्ट. जेल सॉलिड सपोर्ट के ठीक ऊपर जो पहला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू कलर का इमेज है. ये वही वाला अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल आपने रन किया जिसपे आपको स्मीयर बैंड क्रिएट हुआ है वो पूरा का पूरा जेल उठा के यहाँ रखते हैं. कहाँ रखते हैं? सबसे नीचे है जेल सपोर्ट, उसके ठीक ऊपर आपको एक वीक दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड ब्लॉटिंग वीक. इसको हम ब्लॉटिंग वीक कहते हैं. ये ब्लॉटिंग वीक का जो दोनों एंड है वो बफर के अंदर इमर्स है. आपको दिख रहा होगा ये एंड और ये एंड, ये दोनों एंड इस ब्लॉटिंग वीक का इमर्स है इनसाइड द बफर. सो सबसे पहले अरेंजमेंट में
जेल सॉलिड सपोर्ट है, उसके ठीक ऊपर वीक है, और वीक के ठीक ऊपर अगारो जेल उठा के रखा हुआ है जिसमें से हमको इम्प्रिंट रेप्लिका तैयार करना है। उसके ठीक ऊपर आपको ये रेड कलर से दिख रहा होगा, इज कॉल्ड नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन रखा हुआ है जिसपे अपने को ब्लॉट तैयार करना है, दैट मीन्स ट्रांसफर करना है डीएनए को फ्रॉम अगारो जेल टू नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके ठीक ऊपर अरेंजमेंट है, ये नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन रखा है। उसके ठीक ऊपर देखो ये पेपर टॉवल्स हैं, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट पेपर, स्टैक ऑफ पेपर्स इकट्ठा किए हुए हैं, और उसके ऊपर 500 या 1 किलोग्राम का वजन रखा हुआ है। So this is the totally arrangement. You can say this is arrangement is in the ascending order. नीचे से आपको दिख रहा होगा पहले solid support, फिर weak, फिर agarose gel, फिर nitrocellulose membrane, फिर absorbent papers के stack, उसके ऊपर एक वजन या वेट रखा हुआ है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस यू कैन से चैम्बर। इस चैम्बर में एक चीज और देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, दैट मीन्स यू कैन से द दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इस तरफ देखो आप और इस तरफ देखो, between the platinum electrode for the capillary transfer of DNA band on the gel to the nitrocellulose membrane. So आप जब करंट पास करते हैं तो चार्ज के हिसाब से यहाँ क्या होगा, बफर के अंदर मूवमेंट होगा, और कैपिलरी मोशन से वीक के सहारे जो जिसका दोनों एंड इमर्स्ड है इनसाइड द बफर, जो यहाँ पे डीएनए सेपरेटेड है अगर वो जेल, उसका इम्प्रिंट तैयार हो जाएगा नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर। सो इसको इस तरह से कहते हैं कि व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट, कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ये मेंशन किया है मैंने, 100 वोल्ट है फॉर 1 आवर के लिए, और इट इज रिटन एट द कांस्टेंट करंट, ऐसा भी कह सकते हैं आपको, इट शुड नॉट बी एक्सीडेड देन 0.4 एम्पियर। सो क्या होगा, जेल कंटेनिंग द डीएनए, इस जेल के अंदर जो डीएनए है, दिस डीएनए इज इलेक्ट्रोफोर्स्ड आउट, या यू कैन से ब्लॉट आउट, और यू कैन से इम्प्रिंट उसका बन जाता है। इट्स इलेक्ट्रोफोर्स्ड आउट of the gel and you can say imprint on the nitrocellulose membrane. Nitrocellulose membrane के ऊपर पूरा का पूरा इसका imprint बन जाएगा. So this is called the total arrangement of the blotting where we can make the replica, or you can say transfer this. After the transfer, this DNA fragment need to be fixed to the membrane so they cannot detach. मतलब एक बार यहां मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो गया अगर वो जेल से डीएनए, सो ये जरूरी है कि वो डिटेच ना हो जाए, इसलिए उसका नेक्स्ट स्टेप में, जब इज कॉल्ड 6th स्टेप में, हम बेकिंग करते हैं एट 80 डिग्री सेल्सियस बेकिंग करते हैं, और उसके लिए हम हीट सील्ड बैग यूज करते हैं। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये नाइट्रोसेलुलोज वही मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर आपने यहां से तैयार किया है। सो ये सेम आपको बैंड नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी आपको ऐसा स्मीयर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इस पे भी, क्योंकि वो इम्प्रिंट बना हुआ है उसका। सो इसमें क्या करेंगे, आपने वहां से उठा के बेकिंग करते हैं। इसमें करते क्या है कि एक हीट सील्ड बैग है जिसके अंदर बेकिंग करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हम अल्ट्रा वायलेट क्रॉस लिंकिंग भी कह सकते हैं। सिंपल आप समझो कि बेकिंग करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, दैट्स वाई, सो दैट इट कैन नॉट डिटैच, इस पर जो डीएनए इम्प्रिंट बना हुआ है वो डिटैच ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 7th स्टेप पे। इसके ठीक बाद 7th स्टेप में क्या करते हैं कि इसको, ये पूरा का पूरा जो नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन है, इसको इमर्स करते हैं इनटू अ सॉल्यूशन विच कंटेनिंग द रेडियो लेबल्ड प्रोब, डीएनए प्रोब। रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब ये एक सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब है, और ये खास ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए प्रोब है दैट हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस टू सम ऑफ द सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपको सीक्वेंस यहाँ पे मिला हुआ है, ये सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री, आपको याद है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्कली ट्रीटमेंट कर दिया था, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है। अब जो हम रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए प्रोब यूज कर रहे हैं वो भी सिंगल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। सो दिस डीएनए लेबल्ड डीएनए प्रोब हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू सम ऑफ द सीक्वेंसेस ऑन द मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई द लेबल्ड प्रोब, ये जो लेबल्ड प्रोब है, will hybridize to the complementary material on the membrane and इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करके बना लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब जो क्या होगा कि देखो, इसमें सेपरेटेड है, बाकी जो एक्सेस है प्रोब बच गया उसके ऊपर, उसको हम फिर से बफर वॉश करके एक्सेस को रिमूव कर लेंगे इन द 8th स्टेप। एक्सेस बफर विल बी रिमूव। नाउ in the 9th step, it is important to
that membrane filter should be placed on the X-ray film to produce a image of the DNA band. आपको डीएनए बैंड का इमेज चाहिए जिसको आप ढूंढ रहे थे, यू आर ट्राइंग टू डिटेक्ट बाय द मीन्स ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. सो फाइनली यू विल गेट अ एक्सरे फिल्म विद द डीएनए बैंड. आपको ये डीएनए बैंड यहाँ दिख रहा होगा, एक डीएनए बैंड यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, या यहाँ. ये जो फर्स्ट लेन है दैट इज कॉल्ड मार्कर लेन. सो द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द बाउंड प्रोब यू कैन से कैन देन बी विजुअलाइज बाय द दिस एक्सरे फिल्म को डिटेक्शन करते हैं बैंड को, इसको कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, as the probe was radioactive level. Even just this is the whole 10 step is explained about the Southern blotting technique. At last, it is also important to understand what is the application of Southern blotting technique. 3-4 application मैं आपको बताता हूँ. What exactly is the application? क्या क्यों करते हैं Southern blotting technique? Southern blotting technique is most commonly used to detect the presence of particular bit of DNA in any sample. दूसरा, to determine the molecular weight of restriction fragment and you can say the measure the relative amount of the different sample. 2-4 और एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज ऑल्सो यूज इन जीन डिस्कवरी, जीन मैपिंग, यू कैन से इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज में भी यूज करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मैप्स में भी इसका यूज होता है. Southern blotting technique is also used, you can say, in the identification of the transferred gene into the transgenic plant में, मतलब एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज होता है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज टू स्टडी द फॉरेंसिक्स to identify the criminals from the DNA samples. So this is whole story about the Southern blotting technique. आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन भी कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा इंटरेक्शन में मज़ा आएगा आगे. हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.